پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ خداوند جو غیور اور قادر مطلق ہے، اس کے مقدس اور افضل ترین نام میں آج شب پھر آپ تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں، اور ہر بار یہ کہنے میں مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ خداوند کی طرف سے مجھے جب بھی کلام کی خدمت کرنے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے تو یہ میرے لیے بونس ہے، غنیمت ہے اور شرف کی بات ہے، کیونکہ اس بڑی قلیل سی اور مختصر سی زندگی میں خداوند یہی چاہتے ہیں کہ اس کلام کی باتوں کو سیکھ کر میں اپنی زندگی میں اپناؤں، اور جو میرے لیے فائدہ مند اور برکت کا سبب باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنے والا ہو سکوں۔ ہماری اسکائپ آئی ڈی follow.jesus7 پر کی گئی اس ساری پرستش کے لیے اور ایمانداروں آپ کی دعاؤں کے لیے اور اس میٹنگ کے بڑے خوبصورت انداز سے پریزائڈ کرنے کے لیے خداوند کے بعد آپ کا ممنون ہوں۔ اب وقت آ گیا کہ خداوند کے اس زندگی بخش اور معتبر کلام کو ہم مل کر سیکھنے والے ہوں۔ عہد عتیق میں سے زبور کی کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم اکثر اوقات یعنی زیادہ تر لوگوں کو یہ یاد ہے کہ زبور 150 اصل میں ہمارے پاس ہیں، 1 سے 150 تک، لیکن اکثر اوقات ایک بات کو ہم بھول جاتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ اس زبور کی کتاب میں گویا 5 جلدیں ہیں، 5 والیمز ہیں، 5 مختلف کتب ہیں جن پر عام طور پر غور نہیں کیا جاتا، حالانکہ لکھا ہے کہ یہ پہلی کتاب ہے، یہ دوسری، یہ تیسری، اور یہ چوتھی، اور یہ 5ویں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ پین، پنسل، نوٹ بک لے کر بیٹھیں، کیونکہ آپ اتنے وفادار ہیں کہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی لیے کر بیٹھے ہوئے تھے، خدا کرے کہ انجی ہویا ہوئے۔ تاہم خداوند کے مقدس کلام سے میں جب ان 5 کتابوں سے متعلق یا زبور کی کتاب سے متعلق تھوڑی سی بات کرتا ہوں تو یہ بتاتا چلوں کہ ان 5 کتابوں میں پہلے 41 زبور یعنی 1 سے 41 زبور تک یہ پہلی کتاب ہے، اور پھر 42 زبور سے لے کر 72 زبور تک یہ دوسری کتاب ہے، اور پھر 73 زبور سے لے کر 89 تک 99 تک یہ تیسری کتاب ہے، اور پھر 90 سے لے کر 106 زبور تک یہ چوتھی کتاب ہے، اور پھر 107 سے 150 تک یہ 5ویں کتاب ہے۔ اور اچھا ہو کہ یہ باتیں ہمارے ذہن نشین ہوں تاکہ ہم اس کتاب کو اور بہتر طریقہ سے سیکھ سکیں۔ آج ہم جس حصے میں ہیں اصل میں
वो ज़बूर की किताब में ये तीसरी किताब है। पूरे ज़बूर जो 150 मज़ामीर हैं, 5 कुतुब पर मुश्तमिल है, और जिस हिस्से में आज हम हैं वो तीसरी किताब है। और तीसरी किताब का आगाज है यानी 73 ज़बूर से। और बाय द वे 73 ज़बूर को पहले से खुदा के खादिम इस आईडी पर आगाज कर चुके और एहसन तरीका से सिखा चुके हैं। आज मैं आपके साथ मिलकर इस 73 ज़बूर की बिलखसूस 16, 17, 18 और 19 इन आयात पर मुख्तसर सी बात करूंगा ताकि हम बेहतर तौर पर जान पाए, और फिर मैं इस ज़बूर से मुताल्लिक कुछ और बात करूंगा। और क्यों ना इन आयात यानी इस मतन के मुतालिया से पेशतर इस ज़बूर से मुताल्लिक मैं ये भी कहता चलूं कि ये जो तीसरी किताब है, इसमें जो पहले 11 ज़बूर हैं वो सारे के सारे मर्द खुदा आसिफ के जरिया से लिखे गए हैं। यूं तो 73 से 89 तक पूरी तीसरी किताब है, लेकिन इसके पहले 11 मज़ामीर आसिफ के जरिया से लिखे गए। और आलमों का ख्याल है कि आसिफ एक ऐसा शख्स था जो एक जबरदस्त परस्तार, खुदावंद की परस्तिश करने वाला, और एक जबरदस्त म्यूजिशियन यानी मौसीकार भी था। और दाऊद, और पॉसिबल है कि इब्ने दाऊद यानी सुलेमान के दौर में खुदा के घर में ये आलाते मौसीकी के साथ खुदावंद की परस्तिश करने वालों में क्वायर का इंचार्ज था। इसके अलावा ये एक ऐसा शख्स भी है जिसको नबुवती खिदमत भी मिली और शाहाने यहूदा और इसराइल के हां ये नबुवत भी किया करता था। और इसके ताल्लुक से हम तवारीख की पहली किताब, इसका 25 बाब और उसकी सिर्फ पहली और दूसरी 2 आयात आपके सामने रखता हूं, जहां पर लिखा है, फिर दाऊद और लश्कर के सरदारों ने आसिफ और हेमान और यदूतून के बेटों में से बाजू को खिदमत के लिए अलग किया ताकि वो बरबत और सितार और झांझ से नबूवत करें। और जो उस काम को करते थे उनका शुमार उनकी खिदमत के मुताबिक ये था। आसिफ के बेटों में से जकूर, यूसुफ, नतनिया और असरीलाह। आसिफ के ये बेटे आसिफ के मातहत थे जो बादशाह के हुक्म के मुताबिक नबूवत करता था। आसिफ की बात हो रही है। तो अब हम जान गए हैं कि असल तो किताब मुकद्दस का मुसन्निफ रूह खुदा बजाते खुद है, लेकिन जिन इंसानों को चुन लिया गया मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से कि इस कलाम को वो तहरीर करें अपने अल्फाज और अपने माहौल में, उनमें से एक ये आसिफ था। और इस तीसरी किताब के आगाज में इस ज़बूर यानी 73 ज़बूर को बेहतर तौर पर समझने के लिए चंद एक बातों का जानना बहुत जरूरी है।
اور میں اس لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ آج کئی چہرے ہمارے ساتھ نئے ہیں اور ان کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. پہلی 12 آیات جن پر میں بات نہیں کروں گا، مرد خدا آصف بے دین اور لادین لوگوں کی پراسپیرٹی، یعنی ان کی شہرت اور ان کی ترقی کے سبب سے حیران اور پریشان بھی ہے. اور جب روح القدس کی تحریک سے لکھتا ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے وہ کا لفظ استعمال کرتا ہے. وہ یوں کیوں ہیں، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، انہیں کیا ہو گیا، وہ اور وہ اور وہ. لیکن جب ہم 13 آیت سے لے کر 17 آیت تک دیکھتے ہیں تو وہاں وہ اپنی مایوسی اور اپنی سوچ پر غور کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور تھوڑا سا دیکھیں گے بھی کہ وہاں وہ لفظ میں استعمال کرتا ہے. بے دینوں کے لیے وہ اور پھر اپنے لیے میں. اور اس کے بعد 18 آیت سے لے کر 22 آیت تک وہ اس مسئلے کے حل کے لیے کہ ایسا کیوں ہے، وہ خدا کے مقدس میں جاتا ہے. تو وہاں وہ خدا سے بات کرتا ہے اور تو کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو یعنی اے خدا. آپ دیکھتے ہیں پہلے وہ دنیا کے حالات دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے آپ کی بابت سوچتا ہے، اور اس کے بعد وہ ذات الہی سے متعلق سوچتا ہے اور خیال کرتا ہے. اور پھر ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو 23 سے 28 تک میں ان آیتوں پر بات نہیں کروں گا، میں صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ ان آیات میں جب اپنے ایمان اور خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کی بات کرتا ہے مرد خدا آصف، تو خداون اور دنیا کی بات کرتا ہے مکس. اور اس کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ بے دین کیوں ترقی پاتے ہیں اور خدا ان کو سزا نہیں دیتا. اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو بزرگ ایوب کے وقت بھی اٹھا کہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ کیوں دکھ اٹھاتے ہیں اور بے دین کیوں پراسپر ہوتے ہیں. یہ سوال حبقوق کا بھی تھا. اگر ہم حبقوق پہلا باب اور اس کی 13 آیت دیکھیں تو وہ بھی یہی کہتا تھا، اے خدا تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کرتا. پھر تو دغا بازوں پر کیوں نظر کرتا ہے، اور جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نگل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا ہے. ایوب کی بابت بھی یہی بات تھی. حبقوق نبی بھی یہی بات کر رہے ہیں. اور اگر زیادہ دور نہ جاؤں تو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی مسیح خداوند سے یہ کہہ رہے تھے اس ویک پہلو کے اعتبار سے کہ مالک
उस्ताद रब्बोनी ये तो बताएं कि ये जो शख्स नाबीना पैदा हुआ है, बताइए कि ये कसूर इसका है, इसके वालिदैन का है या इसके असलाफ का। हम आम तौर पर इसी तरह की बातें सोचते हैं, और इवन आज भी मैं अपने बारे में कह सकता हूं, और पॉसिबल है कि आप में से भी कोई यह सोचता हो कि मैं खुदा का बंदा हूं, मैं खुदावंद की बंदी हूं, खुदावंद के साथ मेरा दिल लगा हुआ है, लेकिन मैं इस कदर दुखों में मुब्तला क्यों मैं इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स में मुब्तला हूं, क्यों मेरे इतने ज्यादा दुश्मन हैं, क्यों मैं बीमारियों में और मुख्तलिफ तरह की परेशानियों में उलझा हुआ हूं। शायद आप में से भी कोई इसी तरह से सोचता हो, लेकिन हम इन आयात से मुताल्लिक देखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा, अगलब है कि हमें जवाब मिल जाए। आयत 16 से 73 ज़बूर की 16। जब आसिफ इर्द गिर्द के हालात को देखता है, सवाल उसके जहन में पैदा होता है, तो वो कहता है, जब मैं सोचने लगा कि इसे क्या समझूं और कैसे समझूं कि ये इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्यों खुदा खामोश है, बदकार और शरीर लोग बेदीन और लादीन क्यों सीना तान कर चलते और यूं लगता है कि जैसे बड़े सुख के साथ रहते हैं, क्या वजह है? तो ये मेरी नजर में दुश्वार था, यह समझना मुश्किल था। इस आयत में जो बात आसिफ कह रहा है वो ये है कि जब मैंने इर्द गिर्द के लोगों को देखा जो दुनियादार, लादीन और खुदा से दूर और शरीर और बदकरदार और बदकार लोग हैं, वो इस कदर फलते फूलते खुशहाल और खुशी की जिंदगी बसर करते हैं, तो मेरे लिए यह समझना बड़ा दुश्वार था, मुश्किल था कि यह सब कुछ क्यों है। क्या आपके जहन में भी कभी इस तरह का सवाल आता है कि मैं ही क्यों, ये मेरे इर्द गिर्द सब कुछ क्या है, मैं ही इतने बरसों से इतने मुश्किल हालात से दो चार क्यों, क्या रीजन है? और बाज़ोकात खुदा के लोगों, हम जिन हालात में होते हैं हमारे लिए समझना महाल और मुश्किल होता है कि हम क्यों इन हालात में हैं, और जो हैं, मैं ऐसे हालात से गुजरा, कुछ बाकी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो इन हालात से गुजर रहा हो वो सोचता है कि मुमकिन है कि शाम को मेरे लिए आलम बाला से कुमक आ जाए, और जब शाम आती है तो वो सोचता है शायद कल का दिन मेरे लिए खुशी की खबर लेकर आए, और फिर शाम और फिर सुबह, फिर शाम और फिर सुबह, जिंदगी की ये साइकिल चलती रहती है। हफ्ते, महीने और कभी कभी साल गुजर जाते हैं। इसलिए नहीं
کہ خدا ہماری کیئر نہیں کرتا اور فکر نہیں کرتا، بلکہ کلام کہتا ہے کہ ہر ایک گل وچ پیدا کردہ ساڈا رب پلے آئی ہے، اور بعض اوقات ہم سوچتے ہیں ایدے وچوں کی انہیں پلائی کڈنی ہے، میں کرب میں ہوں، میں دکھ میں ہوں، میں مصیبت میں ہوں۔ وہ دیکھو دنیا دار لوگ وہ کس طرح اپنا جیون بسر کرتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ اور مجھے یاد ہے شاید 3 سال پہلے میں اسی آئی ڈی پر بات کر رہا تھا کہ 2 میاں بیوی کہیں سیر کے لیے نکلے اور اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی ان میں، اور جو مسز تھی وہ اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ دیکھو وہ جو گھر ہے، واہ کتنا اچھا گھر ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہمارے پاس بھی ایسا گھر ہوگا، کاش کہ ہمارے ساتھ ہمارے پاس بھی ویسا ہی گھر ہو۔ اور پھر جو میاں تھا یعنی شوہر، اس نے اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا واقعی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یہ گھر بہت خوبصورت، یہ مکان بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، لیکن ایک بات پر آپ نے نگاہ نہیں کی۔ وہ کیا؟ کہ ذرا وہ جو گھر جس کو آپ کہہ رہی ہے نا کہ بہت خوبصورت ہے، اس گھر کی چھت پر ذرا نگاہ کرو، چارپائی چھت پر پڑی ہے، بندہ اس گھر کا سربراہ اس چارپائی پر پڑا ہے اور اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے۔ تمہیں اچھا مکان اور اچھا گھر تو نظر آیا، لیکن جو گھر کا مالک ہے، سربراہ ہے، اس کا حال تجھے نظر نہیں آیا۔ بعض اوقات ہمیں دوسروں کے چمکتے دمکتے مسکراتے چہرے نظر آتے ہیں، لیکن اندر کیا ہے یہ اوپر والا ہی جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، اور کئی بار اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں، کہ جب ہم مصیبتوں اور دکھوں اور پریشانیوں سے خدا کے لوگ ہوتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو ہم دوسروں کی بابت نہ سوچیں کون، کیا اور کیسے، بلکہ اپنے بابت کہ خدا میری دکھوں اور میری پرابلمز اور میری مصیبتوں، میری مشکلات، میری پریشانیوں، میری ٹینشنز کے سبب سے میری روحانی میل اتار رہا ہے، دھو رہا ہے۔ ان مصیبتوں، مشکلات اور تکالیف کے ہتھوڑے اور چھینیوں سے وہ مجھ شیشے کو تراش رہا ہے تاکہ میں ایسا ہیرا بن جاؤں کہ لوگ اس کو اپنی انگوٹھی میں مڑے۔ بزرگ آصف یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، وہ کیوں بڑھتے ہیں، ترقی پاتے ہیں۔ لیکن آیت 17، جب تک کہ میں نے خدا کے مقدس میں جا کر ان کے انجام کو نہ سوچا۔ سمجھنا میرے لیے بہت دشوار تھا، مشکل تھا کہ یہ
क्यों तरक्की पाते हैं। और फिर मैं खुदा के घर में गया और वहां जाकर मैंने रूह में उनके अंजाम को जाना, रिजल्ट, कंक्लूजन, नतीजा उनका क्या है। मैंने इस बात को देखा, मैंने ये महसूस किया है। ये वो बात है जो आसिफ यहां पर मेरे लिए और आपके लिए छोड़ रहे हैं। देखिए, जब यहां लिखा है कि मैं खुदा के मकदस में गया, यकीनन ये खुदा के घर की बात है, खैमा इज्तिमा की बात है, हैकल की बात है। मेरे लिए और आपके लिए आज ये है कि दूसरा क्या करता है, लीव इट, छोड़ दीजिए। मुझे और आपको रात के पहरों में जहां कहीं है एक अलग जगह को खुदा का मकदस बना ले, क्योंकि जहां आप आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर सरे तस्लीम खम होंगे, अपने दिल को खुदा के हुजूर उंडेलेंगे, खुदा की हजूरी वहां होगी और वही खुदा का मकदस होगा। और खुदा का मकदस यानी जहां खुदा है, पहले तो मैं और आप बजाते खुद खुदा का मकदस है, क्योंकि रूह खुदा हमारे दिलों में सकूनत करता है। और उसके बाद जहां हम खुदावन की स्ताइश और परस्तिश करते हैं, अकेले में अपने दिल का हाल उसके सामने बयान करते हैं, वो मकाम खुदा का मकदस बन जाता है। और मर्दे खुदा कहता है, जब मैं खुदा की हजूरी में गया और मैंने खुदा से ये सवाल किया, उसने पूछा होगा कि खुदावन ये क्यों, याहवे क्या रीजन है कि दुनियादार लोग फलते और फूलते हैं। और फिर खुदा की हजूरी में उस पर यह कश्फ हुआ, इंकशाफ हुआ, भेद खुला कि ये धन दौलत आरजी है, जब तक दुनिया में है ये ऐशो इशरत करते हैं और इसी में अपना जीवन गुजारते हैं। ये जिंदगी घास की मानिद है, आफताबे सुबह तुलू होता है और उसकी किरणों की गर्मी की शिद्दत से वो मुरझा जाता है। बुजुर्ग याकूब कहते हैं, बखारात का सा समा है। और एक और मकाम पर मालिक फरमाते हैं कि इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले, अपने बगल में ले ले, लेकिन खुद अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा। मैं समझता हूं खुदावन ने आसिफ पर यह भेद खोला होगा। एक तो तू ये जान कि मैं तुझ पर काम कर रहा हूं, और यही मैसेज मेरे लिए और आपके लिए भी है। खुदा मुझ पर और आप पर काम कर रहा है। और नंबर 2, जिन लोगों को तू देख रहा है ना, ए अमीर आदमी, दुनिया में वो तू सब कुछ ले चुका जो लाजर ने नहीं लिया, और लाजर ने वो ले लिया जो तुम्हारे पास नहीं, इसीलिए तुम इस अजाब में पड़े हो। मैं समझता हूं
ऐसा ही जवाब आसिफ को खुदा की हजूरी से मिला। इसीलिए तो वो कहता है, जब तक मैं खुदा के मकदस में जाकर उनके अंजाम को ना सोचा, उस वक्त तक मुझे ये दुश्वार लगा, मुश्किल लगा कि ये कैसे है। लुडिया पांदे ने दुनिया दे लोग, लेकिन खुदा ने बताया कि ये सब कुछ आरजी और चंद रोजा है। लेकिन मुबारक है वो जिनका दिल मुझसे लगा हुआ है, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं और वो मेरी कुर्बत और वो मेरी हजूरी में रहेंगे। आयत 18, यकीनन तू उनको फिसलनी जगहों में रखता है और हलाकत की तरफ धकेल देता है। आपने देखा, मैं आपको जरा पहली आयत की तरफ लिए चलता हूं। दूसरी आयत में यहां पर कहता है, लेकिन मेरे पांव तो फिसलने को थे। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पांव के नीचे केले का छिलका आ गया था। इसका यह मतलब नहीं कि बस पता नहीं कीच थी और मैं फिसलते फिसलते बच गया। नो 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 नो। इसका मतलब यह है कि जैसे मैं अपने ईमान से ही हाथ धोने वाला था फिसलने को, इस आयत 2 के मुताबिक। लेकिन जो आयत 18 है उसके मुताबिक लिखा है, यकीनन तू उनको फिसलनी जगहों में रखता है और हलाकत की तरफ धकेल देता है। यानी खुदा को वो मुजरिम नहीं ठहरा रहा कि ए खुदा तू ऐसा करता है, लेकिन उसके कहने का मतलब यह है कि इन लोगों का अंजाम यही है कि जिस मकाम पर वो हैं, वो चट्टान पर अपने पांव जमाए हुए नहीं, वो रेत पर हैं, जहां से वो नीचे और नीचे और नीचे और नीचे धंसते चले जा रहे हैं। वो हलाकत की खाई की तरफ जा रहे हैं, वो नारे जहन्नम की तरफ रवां दवा है। अफसोस है, लेकिन आज की दुनिया में बेशुमार लोग जो मसीह की सलीब के पैगाम को कबूल नहीं करते, वो फिसलनी जगह पर हैं, उनके पांव रेत पर हैं, चट्टान पर नहीं है। और मुबारक है वो जो मसीह में है, उनके पांव चट्टान पर हैं। ईमान के एतबार से उन्होंने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आंधियां आए, तूफान आए, उसे कुछ जरर ना पहुंचेगा। आयत 19, वो दम भर में कैसे उजड़ गए, वो हादसों से बिल्कुल फना हो गए। मुझे लगता है कि खुदाबंद ने आसिफ को जैसे खुदा की हजूरी में था, रूह में एक रोया दिखाई, एक फिल्म दिखा दी कि शरीरों का अंजाम क्या है। बेदीन और जो लादीन और ला खुदा है, उनका अंजाम क्या है। खुदा ने मुकद्दस आसिफ को वो सब कुछ दिखा दिया और बता दिया। इसीलिए वो यहां पर ये कहता है, वो दम भर में कैसे उजड़ गए, हवा की तरह वावेला आया और वो इनको उड़ाकर ले गया है और वो हादसों से बिल्कुल फना हुए हैं। और ये हादसात कई तरह के हो सकते हैं। इस वक्त नहीं कि मैं उन हादसात से मुताल्लिक बहुत तफसील से बात कर पाऊं,
लेकिन मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमारे लिए ये बात वाकई बड़ी काबिले गौर है और काबिले फख्र है और फिक्र करने के यानी सोचने के लायक है कि खुदा परस्त लोग, खुदा के लोग मुश्किल और दुख और तकलीफ में इसलिए होते हैं कि वो दुनिया के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते और अबलीस उनके पीछे पड़ा होता है। लेकिन दुनिया के लोग चूंकि अबलीस के हाथों में ऑलरेडी हैं, इसलिए शायद वो हमें प्रॉस्पर होते हुए और तरक्की पाते हुए नजर आते हैं। काश कि मैं और आप इस हकीकत को समझें कि दूसरों के चमकते हुए माथे को देखकर हम अपना दीवार के साथ न मारें, शुक्र अदा करें कि खुदावन मेरे पास गुनाहों की मुआफी है, हमेशा की जिंदगी है, अबदी जिंदगी, और मेरे पास मंजिल है और मैं उस मंजिल की तरफ रवा दवा हूं। हालेलुया। खुदा का शुक्र अदा करें जिन हालात में हम हैं। खुदा हमें बनाता है, संवारता है, तराशता है। वी आर अंडर कंस्ट्रक्शन। लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क इन अवर लाइफ्स। खुदावन इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत बख्शे। छोटी सी दुआ आपके लिए करना चाहूंगा, फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। रब्बुल अफ़वाज, शुक्रगुजार हूं आपके इस खूबसूरत तरीन कलाम के लिए जो रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखा गया है। ए खुदाबंद, शुक्र हो कि हमारे पांव फिसलनी जगह पर नहीं बल्कि चट्टान पर है। बस हमें ईमान की जंग लड़ते रहने का फजल अनायत फरमाए। और मेरे अजीज भाई और बहनें जो इस जंग में शरीक है, रूहानी तौर पर उनकी चीखें निकल जाती है, मुश्किल हालात में है। मिन्नत करता हूं खुदावन, यह भी आपकी मोहब्बत है कि जिसको फर्जंद बना लेते हैं उसको कोड़े भी लगाते हैं। बस ए खुदावन, अपने लोगों को कुव्वत बर्दाश्त अनायत फरमाए। और इसके साथ साथ वो तमाम अजीज भाई और बहनें जिन्होंने अपने आप को आपके सुपुर्द नहीं किया, दरखास्त करता हूं रूह पाक की कुदरत से उनसे हम कलाम हूं। बोलिए, उनकी जिंदगी में काम कीजिए ताकि वो अपने आप को फुली आपके सुपुर्द करने वाले हो सके। और जो बीमार हैं, परेशान हाल, दुखी और लाचार हैं, खुदाबंद अगर आपकी मर्जी है तो अभी और इसी वक्त उन लोगों को छू कर उनको बीमारियों से शिफा बख्शिए, क्योंकि आप यहोवा राफे हैं। अपने लोगों पर रहम और तरस कीजिए। शिफा, खुशी और मसरत अनायत फरमाए ताकि हम दुखों में भी शादमान रहे। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए, क्योंकि मांगते हैं मसीह इब्न मरियम के मुबारक, जलाली और खूबसूरत तरीन नाम के वसीला से। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और फिर मिलेंगे जब खुदावंद की मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।